Good morning, everyone, and welcome to the class. We have started the revision of the second chapter, that is election and representation. And in this chapter, we have discussed about the importance of election in a democracy. We cannot think of a democratic government or a democratic country in the absence of elections. Elections are must in a democracy, but at the same time we have also seen that it is not always essential that every election is democratic. There may be election in a country, but that election may be undemocratic, and there may be undemocratic government also, which tries to show to the whole world that it is a democratic, although it is undemocratic, but it tries to prove that it is democratic. It has the mandate of the people, and in order to prove this, that the government has the mandate of the people, what is done by the government, the undemocratic government, they hold elections, which is not free and fair. So what we see that we can hold elections even without having democracy. Democracy cannot exist without election, but elections can be there without democracy. Okay, and then we were discussing about various elements of फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी इलेक्शन को ये डिटरमाइन करते हैं कि वो फ्री एंड फेयर है या नहीं. लाइक हु आर द पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट. वोट देने के लिए किसको एलिजिबल बनाया गया है. देन इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर सकता है. देन हु सुपरवाइज द इलेक्शन, and how do the voters choose their representatives, what is the method of election, and how the votes are counted, and how the representatives are elected. So all these are we can say these are the criteria for a free and fair election, and in the constitution of any country all these things are prescribed कि right to vote किसको होगा, then right to contest election किसको होगा, क्या मेथड ऑफ इलेक्शन होगा, who will supervise the election process. All these things are determined by the constitution. Likewise, in our country also the constitution has performed this function. And we have also discussed about the election system in India. In our country, our constitution makers have adopted the system of first past the post system. This is the election system which has been adopted by the constitution makers, and in this regard we were discussing the results of the election of 1984. 1984 के इलेक्शन के जो रिजल्ट थे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे. एंड इन दैट डिस्कशन वी हैव सीन कि इन जो रिजल्ट आया उससे ये समझ में आ रहा था कि जो सीट्स में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वर गेटिंग वट एवर परसेंटेज ऑफ सीट्स आर different political parties are getting, and what is their share in the percentage of vote, उनके बीच में कोई proportion नहीं था. There is lack of proportion between the percentage of seats they are winning and the percentage of votes they are getting. जो different political parties जिन्होंने की contest किया election को, उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम क्या देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. जो इलेक्शन का रिजल्ट है कि उनको जो सीट्स में जो परसेंटेज मिल रहा है और जो टोटल वोट में जो उनको परसेंटेज मिल रहा है उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम कह सकते हैं.
किसी कोई प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे कि इफ वी सी द एग्जांपल ऑफ कांग्रेस पार्टी, वी फाइंड दैट कांग्रेस पार्टी वाज एबल टू विन more than 80% of the seats in the Lok Sabha in 1984 election। 80% से ज़्यादा सीट्स विन करती है। बट इफ वी सी इन टर्म्स ऑफ वोट्स, व्हाट वी फाइंड कि वोट्स में उसको सिर्फ 48% वोट्स ही मिलते हैं। तो दिस इज लैक ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कुछ है ही नहीं। वोट्स 48% मिला, सीट्स 80% से ज़्यादा मिला। लाइकवाइज बीजेपी को हमने देखा कि बीजेपी को जो वोट्स मिले वो दैट वाज 7.4%। जितनी भी वोटिंग हुई उसका 7.4% वोट जो है वो बीजेपी को मिलता है। बट बीजेपी वाज एबल टू विन ओनली लेस देन 1% ऑफ द सीट। 1% से भी कम सीट वो उसको मिलती है, जबकि वोट उसको 7.4% मिलता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो नतीजे हैं, जो कंसिक्वेंस, जो रिजल्ट्स, वी आर सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन ऑफ 1984। इट इज नॉट ओनली द केस ऑफ 1984 इलेक्शन, इन ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्शन द सेम सिचुएशन प्रिवेल्स। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टाइप ऑफ रिजल्ट की सीट्स में प्रोपोर्शन ज़्यादा है, सीट्स में हमारा परसेंटेज ज़्यादा है, वोट्स में कम है। किसी पार्टी का सीट्स में परसेंटेज कम है और वोट्स में परसेंटेज ज़्यादा है। तो वाई दिस टाइप ऑफ why this situation is prevailing? Because we have adopted the system of FPTP, first past the post system. In this system, what happens ki the whole country is divided into 543 constituencies, and then from each constituency one candidate is one representative is elected, and the candidate who is elected or the representative who gets elected from a particular constituency is that candidate who secures the highest number of votes. It is not important or it is not essential for a candidate to win at least 50% of the votes, or any other criteria is not there. In order to win the election, you only need maximum number of votes. अगर maximum number of votes आपको मिल रहे हैं तो you will win the election। भले ही वो 50% से बिलो हो, कभी कभी वो 25%, 20% तक हो सकता है, still you will win the election। अगर if the other candidates are not getting more than you, है ना, हमको 20% भी वोट मिल रहा है अगर, तो भी हम उस कंस्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, क्योंकि अदर कैंडिडेट्स जो हैं उनको किसी को भी 20% वोट भी नहीं मिला, सबको 20% से नीचे वोट मिला है। तो दिस इज द FPTP सिस्टम, जिसमें कि जैसे मैंने बताया था एथलेटिक्स का जो सिस्टम होता है उसको अडॉप्ट किया गया है कि जो विनिंग पोस्ट को सबसे पहले कौन क्रॉस कर रहा है। जैसे ये दीज आर द एथलीट्स जो कि दौड़ रहे हैं, दे आर इन द रेस, और यहाँ पर हमारा विनिंग पोस्ट है। अब इनमें से जो सबसे पहले इस पोस्ट को पार करेगा, हु विल पास दिस पोस्ट फर्स्ट, ही विल बिकम द विनर। इट इज नॉट एसेंशियल कि वो कितने समय में पास कर रहा है, दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया, बस उसको सबसे पहले उस पोस्ट को पास करना चाहिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड लाइक दिस। तो इसी तरह से जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भी जो कैंडिडेट है वो तभी जीत रहा है अगर उसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जा रहे हैं, तो वो जीत जा रहा है। एंड इन दिस सिचुएशन व्हाट वी फाइंड कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मल्टी पार्टी सिस्टम इज there, है ना, we have multi-party system. If we compare our political party system or the party system with the party system of US or Britain, what we find that in those countries there is bi-party system. In our country we have multi-party system, and we have adopted this FPTP system from Britain. तो ब्रिटेन की कंडीशन दूसरी है, हमारी कंडीशन दूसरी है। हमने
हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसी देयर विल बी मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, many number of candidates will contest the election from a single constituency, and in that situation what happens ki votes of the people or the votes of the people of that constituency gets divided. और डिवाइडेड का डिवीजन का मतलब क्या होता है? कोसेंट हमारा छोटा होता जाता है ना, जितना बड़ा जितने नंबर ऑफ वो ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितना ज़्यादा होगा उसके उनको मिलने वाले वोट्स उतने कम होते जाएंगे। एंड दैट इज द रीज़न कि इन आवर कंट्री मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि अ कैंडिडेट or a party, we can also say a party gets only 25% of the votes in every constituency, but still it is the winning party because other parties are not able to get that 25% of the votes, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली वोट्स जो हैं वो बटेंगे, और जब वोट्स बटेंगे तो क्या होगा कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसका नंबर ऑफ वोट्स कम हो जाएगा। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल आल्सो, लाइक in a constituency suppose there are 100 voters and there are from that constituency 5 candidates are contesting the election. A candidate is there, B, C, D and E. These are the 5 candidates. Now we will see that the candidate A got 18% of the votes. टोटल वोट्स जो 100 हैं उसका उसमें से 18 वोट जो है वो A को मिलता है। देन B गेट्स 20% ऑफ द वोट्स, देन C गेट्स 22% ऑफ द वोट्स, and again we see that D gets 16% of the votes and E gets 24% of the votes. ठीक है, यहाँ पर हमने 100 रखा है, टोटल जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनको हमने 100 अज्यूम किया है, वी हैव अज्यूम्ड इट 100। तो क्या हो रहा है, ये सारे जो है वो परसेंटेज जो हम कह रहे हैं वो नंबर है। 18 लोगों ने A को वोट दिया, 20 ने B को दिया, 22 ने C को दिया, 16 ने D को दिया और E को 24 लोगों ने दिया। तो यहाँ पर हु इज गेटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स? इट इज E. So E is getting 24 votes out of 100, and that is why E will elected. He will be elected from this constituency as representative. बस उसको 24% ही वोट मिल रहा है and वो जीत जा रहा है इलेक्शन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट हैं। अगर एक दूसरी कंडीशन होती जिसमें कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट होते, सपोज ओनली 2 कैंडिडेट्स आर देयर, A and B, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपन? इन दिस सिचुएशन 100 पीपल आर देयर, 100 लोग हैं और 2 कैंडिडेट हैं A और B। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली किसी को 50 से ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, तभी वो विन करेगा, है ना। तो सपोज करो इसको 60 मिलता है, इसको 40 मिलता है, तो A विल बी द विनर, और यहाँ पर A को ऑब्वियसली 50% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। तो ये डाई पार्टी सिस्टम के लिए ही सही होता है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ये चीजें कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। क्यों प्रॉब्लमेटिक हो रही है? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ इस सिचुएशन को भी हम लोग को कंसिडर करना, बिकॉज इन इंडिया वी आर फेसिंग दिस सिचुएशन ओनली। हियर वी सी E इज द विनर, है ना। तो E गॉट 24 वोट्स और 24% ऑफ द वोट्स। तो बाकी के जो वोट्स हैं वो कितने हुए? 76, है ना। 76 जो इन सबको मिला के 76 वोट्स लोगों ने जो वोट दिया, A को, B को, C को, D को, 76 लोगों ने वोट दिया। ये सारा वोट क्या हो गया? वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि ये जो 76 लोगों ने जो वोट दिया उनका तो रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं।
these 76 people are not getting represented. Only these 24 people have their representative. 76% जो लोग हैं उन्होंने जिनको वोट दिया, अलग अलग लोगों को वोट दिया और वो सारे वोट बेकार हो गए. तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ दिस FPTP सिस्टम कि इसमें जो अगर मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ हम FPTP को अडॉप्ट कर रहे हैं तो इस बात की बिल्कुल संभावना होती है कि जो भी विनिंग कैंडिडेट है ही विल गेट लेस देन 50% ऑफ द वोट्स. और अगर लेस देन 50% ऑफ द वोट्स मिल रहा है और स्टिल ही इज एबल टू विन द इलेक्शन, इट मीन्स ही इज नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटिंग द कंस्टिट्यूएंसी. क्योंकि आधे से भी कम लोगों ने उसको अपना वोट दिया है, स्टिल ही इज रिप्रेजेंटिंग द कंस्टिट्यूएंसी, द होल कंस्टिट्यूएंसी. तो ये इस कारण इसकी हम इसको सबसे बड़ी लूप होल कहेंगे. दिस इज द डिफेक्ट ऑफ द सिस्टम. और इसी कारण से एक दूसरा सिस्टम जो है वो भी है. कई सारे कंट्रीज ने इस FPTP सिस्टम को नहीं अडॉप्ट किया. दे हैव अडॉप्टेड अनदर सिस्टम ऑफ इलेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि जिसमें कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं उस प्रॉब्लम से वहां पर बिल्कुल भी नहीं होती है. ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय नेम ओनली, कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो प्रोपोर्शन में है. किस चीज के प्रोपोर्शन में है? जो द प्रोपोर्शन विच वाज लैकिंग इन द FPTP सिस्टम, दैट प्रोपोर्शन इज देयर इन दिस सिस्टम. सो व्हाट वी फाइंड कि इन इजराइल this type of system is adopted. So what is done in Israel? The voting is done and the votes are counted. Okay, and then each party is allotted the share of seats in the parliament in proportion to its share of votes. ठीक है, वोटिंग हो गई, लोगों ने वोट दिया, वोट्स की काउंटिंग हो गई. काउंटिंग के बाद क्या हो रहा है कि ये देखा जा रहा है कि हर पार्टी को, जो डिफरेंट पार्टीज हैं, उनको कितना परसेंटेज ऑफ वोट्स मिल रहा है. ठीक है, जितना भी उनका वोट में शेयर है, जितना भी परसेंटेज ऑफ वोट उनको मिला है, उसके अकॉर्डिंगली उनको पार्लियामेंट में सीट मिलती है. अगर जैसे कि हम वी विल डिस्कस द टेबल ऑल्सो इन विच दिस result of one of the elections of Israel is given, but first of all you should understand कि suppose there are 5 parties A, B, C, D and E. These are not candidates, these are parties. Okay, names of the parties. And now elections होते हैं. इलेक्शन में वोटिंग होती है, वोटिंग की काउंटिंग होती है. एंड काउंटिंग में क्या देखते हैं कि जब सारे वोट्स काउंट हो जाते हैं तो ये देखा जाता है कि जो ए पार्टी है दैट गॉट 25% ऑफ द वोट्स, बी गॉट 20% ऑफ द वोट्स, सी गॉट 15% ऑफ द वोट्स, डी gets 30% of the vote and C gets 10% of the votes. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से ये शेयर ऑफ वोट्स है. तो पहले कुछ नहीं, कौन कहाँ से जीता ये सब कुछ भी नहीं होता है. पहले वोटिंग की काउंटिंग हो जाती है. काउंटिंग में देखा जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना परसेंटेज ऑफ वोट्स मिला है. देन इसके अकॉर्डिंगली जितना भी उनको वोट में शेयर मिला है उसके अकॉर्डिंगली उनको पार्लियामेंट में सीट मिल जाती है. सपोज ये हमने 100 में निकाला, ये 100 में निकाला, हमने ये मान के चला कि
100 voters are there. Okay, suppose in the parliament there are 200 members. 200 members are there in the parliament. So in this situation what we will see कि अगर A को 25% of the votes मिल रहा है तो A will get 25% of the seats also. So we will calculate 25% of 200 and what we will get 50. So the party A will be given 50 seats in the parliament. This party A will be allotted 50 seats in the parliament. तो जितना आपको परसेंटेज ऑफ वोट मिल रहा है उतना ही उसी के प्रोपोर्शन में आपको परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलेगा. देयर विल बी कंप्लीट हार्मनी, है ना, कि ये नहीं कि वोट आपको 48% ही मिला और सीट आपको 80% से भी ज्यादा मिल गया. इस तरह का मिस प्रोपोर्शन नहीं होता है. ठीक है, तो इसी तरह से हर पार्टी का कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. अगर इफ बी इज गेटिंग 20% ऑफ द वोट्स एंड इफ देयर आर 200 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, बी विल बी अलॉटेड हाउ मेनी सीट्स इन द पार्लियामेंट? 40 सीट्स इन द पार्लियामेंट. दिस विल बी द सीट ऑफ ए 50, बी विल गेट 40 सीट्स, सी विल गेट 30 seats, D will get 60 seats and E will get 20 seats. तो इस तरह से सीट्स का जो डिवीजन हो रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द वोट्स. जितना वोट उसको मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली उनको सीट्स मिल रहे हैं. तो दिस इज अ वेरी वी कैन से कि मतलब बहुत सही है कि जितना भी लोगों ने वोट दिया कोई वोट वेस्ट नहीं हुआ. और ईच एंड एवरी वोट इज यूज्ड, है ना. जो भी किसी ने जिसको भी वोट दिया वो सभी यूज हुए. कोई भी वोट जो है वो वेस्ट नहीं होता है. ओके, सो दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. और जैसे कि इन दिस इलेक्शन, दिस टाइप ऑफ इलेक्शन व्हाट वी फाइंड कि कैंडिडेट्स आर नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन. द इलेक्शन इज कंटेस्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं एंड ईच पार्टी फिल इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग those many of its nominees from a preference list that has been declared before the election. Before the election, what happens? All the political party, each and every political party, they declare their preference list. ठीक है, हर political party अपना एक preference list declare करती है before election, जिसमें कि वो अपने उन लीडर्स का वो लिस्ट होता है, उनके लीडर्स की लिस्ट होती है ऑर्डर में. जिसको भी फर्स्ट नंबर पे वो रख रहे हैं, मतलब दैट पॉलिटिकल लीडर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर फॉर दैट पार्टी. इस तरह से ऑर्डर में वो पूरी एक लिस्ट बनाते हैं अपने लीडर्स की. ठीक है, सपोज यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, वी विल डिस्कस विद दिस ओनली सो दैट इट बिकम कंप्लीटली क्लियर टू यू कि जैसे ए जो पॉलिटिकल पार्टी है, ए पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी एक लिस्ट डिक्लेयर की थी बिफोर इलेक्शन और इस लिस्ट में उसने 100 लोगों का नाम लिखा था. ये एक लिस्ट है. इस लिस्ट में पार्टी ए ने 100 पॉलिटिकल अपने लीडर्स का, रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम लिखा था. ओके, नाउ आफ्टर द इलेक्शन व्हाट दे फाइंड, दे गॉट 25% ऑफ द सीट्स. Now there is 200 members in the parliament, so the A party has been allotted
50 सीट्स। तो अब क्या होगा, ए ने जो लिस्ट अपनी बनाई थी 100 कैंडिडेट्स की, 100 रिप्रेजेंटेटिव्स की या 100 लीडर्स की, उसमें से जो ऊपर से जो 50 होंगे, ऊपर से जो 50 होंगे, दे विल बिकम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल the candidates are not there to contest the election. The election is contested by the political parties. And political parties, they declare a list, preference list of their leaders before the election. और जब वो इलेक्शन में वोटिंग हो जाती है, उसकी काउंटिंग हो जाती है, और तब जब जो भी सीट अलॉट होता है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने लिस्ट में जो ऊपर से लोग होते हैं उनको वो बना देती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो दिस सिस्टम इज नोन एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ओके, एंड इस सिस्टम की सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो यही है कि अ पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। जितना वोट मिला उतना सीट मिला, बराबर हिसाब जो है वो बिल्कुल बराबर होता है ना। तो दिस इज द बेनिफिट। एंड व्हाट वी सी कि इन द पीआर सिस्टम, दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, टू वेरिएशंस आर देयर इन दिस सिस्टम। दो तरह के वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं इन सम कंट्रीज, लाइक इजराइल में, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इन इजराइल और नीदरलैंड्स। इन कंट्रीज में क्या होता है कि द होल कंट्री इज ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। लाइक इन आवर कंट्री व्हाट वी सी, द होल कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 543 constituencies. Why 543? Because 543 is the number of 543 is the membership of the Lok Sabha, है ना। तो लोकसभा की जितनी भी मेंबरशिप होती उतने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे कंट्री को बांट दिया जाता है इन एफपीटीपी सिस्टम। बट इन पीआर सिस्टम, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके एक वेरिएशन जो कि इजराइल और नीदरलैंड्स में अडॉप्ट किया गया है, अंडर दैट वेरिएशन व्हाट हैपेंस, द होल कंट्री इज ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस कि सीट्स are allocated to each party according to its share of votes in the national election. तो पूरी कंट्री एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी बन गई, और जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, दे आर पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट द कंटेस्टेंट्स, नॉट द कैंडिडेट्स। द इलेक्शन इज कंटेस्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। और उसके बाद वोटिंग होती है, लोग जो पीपल वोटर्स, दे आर नॉट वोटिंग to a candidate, they are not giving their vote to a particular candidate, but they are giving their vote to the political parties। ठीक है, political parties को वो वोट देते हैं और फिर उसकी काउंटिंग होती है और उसके अकॉर्डिंगली उनको सीट्स मिलती है। ओके, एंड other method is also there. In other method what happens that the whole country is divided into several multi-member constituencies। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे हमारे यहाँ इन एफपीटीपी सिस्टम वी हैव सो मेनी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी एंड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी वन representative is elected. But in one of the variations of the PR system, we find that there is multi-member constituencies is there। ठीक है, मल्टी मेंबर का मतलब कि एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि कई सारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड मल्टी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स, मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज, जहां से कि मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स आर गेटिंग इलेक्टेड। और दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज अडॉप्टेड इन अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल। तो जब हम मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज वाले पीआर सिस्टम को देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इन दैट सिस्टम ईच पार्टी प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी। हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए
हर पॉलिटिकल पार्टी वो अपनी एक लिस्ट बनाती है, ठीक है, हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए। एंड जो लिस्ट बनाती है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी, ये फिक्स होता है। जैसे एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से सपोज कि 10 मेंबर्स को इलेक्ट होना है, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, दैट पॉलिटिकल पार्टी विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी, है ना। जितने मेंबर की वो कंस्टिट्यूएंसी है, जितने मेंबर को उस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होना है, उतने मेंबर को की वो लिस्ट बनाती है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे का काम होता है। एंड इन दोनों ही वेरिएशन में हम देखते हैं कि वोटर जो है वो पार्टी को वोट देता है, न कि कैंडिडेट को। ये दूसरी सिस्टम जो है इसमें भी पार्टी को वोट दी जाती है, कैंडिडेट को नहीं वोट दी जाती है। एंड देन वी सी कि द सीट्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स पोल्ड बाय अ पार्टी। पार्टी को जितने वोट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको उस कंस्टिट्यूएंसी में सीट्स मिलते हैं। सो representatives from a constituency would and do belong to different parties। एक ही constituency से कई सारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही पार्टी का कैंडिडेट इलेक्ट होगा, बल्कि वो डिफरेंट पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं। हम we have also adopted proportional representation in some of the elections, like राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन, देन प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इन सबकी विधान परिषद जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, सेकंड चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उनके जो मेंबर्स होते हैं, इन सब के इलेक्शन के लिए हमने भी पीआर सिस्टम को ही अपनाया है, अडॉप्ट किया है। और पीआर सिस्टम के हमने थर्ड वेरिएशन को अपनाया। ये दोनों वेरिएशन जिसकी हमने अभी बात की, इजराइल वाला और अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल वाला, इन दोनों को छोड़ के हमने थर्ड वाले वेरिएशन को अडॉप्ट किया है, जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सो वी विल डिस्कस द मैटर in the next class.